related things and share their experiences with the students. So the topic for today would be a general startup related issues. And yeah, so I love to introduce Mr. Saurabh Jain for you. Mr. Jain is the Vice President at Paytm. He's heading Paytm Build for India program. Though his journey with Paytm started as a consultant, Paytm's Build for India is an open source incubator to promote open source projects in the country. Through the initiative, Paytm seeks to provide a bridge between the youth, industry, government, and institutions. It is also Paytm's way of addressing the existing democratic dividend, where the majority of the workforce will be the youth of the country, with the help of channelizing energy to solve the problems. Saurabh Jain is a chartered accountant. He has a keen interest in technology, despite the fact that he's from a commerce background. He's also written 2 books on mobile application technology. He's written Mobile Phone Programming, which is India's first book on mobile app programming, and the book was published in 2003. Mr. Saurabh Jain is also the founder of Fun2Do Labs. Fun2Do Labs is an open education project. So we invite you, Mr. Saurabh Jain, to inspire us with your talk. Good evening, everyone. So, just to get an idea, are all the attendees students in the college, or is it a more random audience? Just to get some idea. So it's mainly the students of the college. Okay. So, good evening, everyone. So, I will be sharing you some startup gyan. Before that, I was introduced, so but I will like to share it again. Just 1 minute. Can you allow me screen sharing? I think screen sharing is blocked here. Yes, sir. Sir, will you excuse me? I just want to make a point that please keep your videos and your audios muted so that the bandwidth is better and everyone can view the video call more smoothly. Also, if you have a question, please put it in your chat box. We'll be addressing all of the questions after the webinar ends. Thank you. Is just so I am the vice president at Paytm. I had an initiative called Paytm Build for India. Besides my normal payment gateway sales, etc., kind of responsibilities, and I am also a founder of Fun2Do Labs Open Education Project. I was running this startup before I joined Paytm, and now I've converted it into an open education project. And I was an entrepreneur for 15 plus years. First time I did job in my life in Paytm. And I was author of India's first book on mobile app development. It was a technical book on J2ME technology. Although I am a CA by degree and have never been to an engineering college, but I have trained a lot of engineers. So Build for India is an initiative to promote entrepreneurship in India. We believe that entrepreneurship is the solution to millions of problems which our country faces. And you can follow us on at Paytm Build India. Who is an entrepreneur? See, an entrepreneur is someone who can do more than what is thought possible for less than what is thought possible. This definition was given by John Doerr. John Doerr is the legendary investor who invested in Google in the early days. He's a very big personality in USA. And if you have heard of OKRs, Objective and Key Results, it's a management term. John Doerr has promoted that through his book. So basically what it means is that entrepreneur is somebody who can do 1 + 1 = 11. If somebody can do 1 + 1 = 2, then they are a businessman. If somebody can do 1 + 1 = 11, practically they are an entrepreneur. What is a startup? A startup is any organization which builds a product or a service under uncertainty. So startups, generally speaking, are very glamorous these days. But if you see the definition, startup is basically any organization which builds a product or service and it builds it under uncertainty. So the definition doesn't say that startup is a small company. The definition doesn't say that startup is a funded company. So startup can be any organization. It may be a government organization also, but at the end of the day, it is building something under uncertainty. 3 types of startup: winner takes all startup, lifestyle startup, social startup. So see, winner takes all startups are
जो स्टार्टअप्स होती हैं, आई फील इन बंगाल आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ आई स्विच अ लिटिल बिट टू इंग्लिश. तो विनर टेक्स ऑल स्टार्टअप का मतलब होता है कर लो दुनिया मुट्ठी में. आपने एक सुना होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में. So winner takes all startup is having that motto. These are startups like Paytm, Uber जो अपनी category dominate करते हैं. Then there are lifestyle startups which very aggressively say that we want a work-life balance. For example, Basecamp is a US-based startup. They say कि we don't want our employees to work more than 40 hours a week. This is very interesting because generally in winner takes all startup, generally the focus is on work. मतलब not all startups say कि work, but at the end of the day, the focus is on work. Focus is not like work-life balance. तो उतना फोकस नहीं होता जितना लाइफस्टाइल स्टार्टअप में. जैसे बेसकैम्प के फाउंडर्स दे एक्सप्लिसिटली से वी डोंट वांट आवर एम्प्लॉइज टू वर्क मोर देन 32 आवर्स अ वीक इन समर्स, व्हिच इज ऑब्वियसली अनहर्ड ऑफ इन एनी नॉर्मल स्टार्टअप. एंड सोशल स्टार्टअप पे आते हैं. इट्स लाइक खान अकेडमी, वंस अपॉन अ टाइम विकिपीडिया आल्सो वाज अ सोशल स्टार्टअप. These are basically NGOs, but they work like startups. They are new age NGOs, I would say. Three goals of a startup पे आते हैं. तो as a student in 2002, when I was doing my CA, तो मेरा एक सपना था कि one day I would open a company. It will have a portfolio of products. It would have a high culture, good culture, and one day IPO will come. I will become a millionaire. तो उसके बेसिस पे 3 फोकस एरियाज निकलते हैं. एंड ये आई हैव वैलिडेटेड दिस 3 फोकस एरियाज आफ्टर रीडिंग मोर देन 200 बुक्स. So I've read more than 200 books on startups and startup related topics, edtech, education, design, coding, इनसे related last 5 years में I've read 200 books. So ये जो 200 books हैं उसमें I can vouch कि उनका सबका end result यही है कि as a startup entrepreneur focus on product, people and purchasing power. And विजय के साथ I got opportunity to work with Vijay. Vijay Shekhar Sharma is the founder of Paytm. तो उनको भी I have seen he focuses on product, people and purchasing power. So 3 stages of startup life cycle: search, build and scale. देखिए startups are all about searching what to build, then building and then scaling. तो generally ना startups these days are very glamorous. तो आपको लगता होगा startups have posh offices, they have like startups are वो जो एक जमाने में मतलब एक वो होता था ना ड्रीम जॉब अमेरिका जाना होता था. अब वो स्टार्टअप्स ने रिप्लेस कर दिया. एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर एंड बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर. तो वो स्केलिंग दिखाते हैं टीवी वाले या न्यूज़पेपर्स. But actually, it's like an iceberg. 10% of the startup, the scaling phase is visible to people. But 90% things which happened before scaling, searching and building, nobody shows you that. So I will be showing you search building के अंदर क्या होता है. I would focusing on less on other aspects. So I have created a tool called Startup Canvas, 9 steps to startup success. So this is a 3x3 matrix: search, build, scale, product, people, purchasing power, problem, solution, fit is the starting point. तो स्टार्टअप्स की एक विचारधारा होती है ऐसी. जैसे वेस्ट बंगाल इज वेरी फेमस फॉर पॉलिटिक्स एंड ऑल. तो यू सी कि देयर आर सो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की एक विचारधारा होती है ना. वी हैड कम्युनिस्ट इन वेस्ट बंगाल, वी हैव बीजेपी जिसकी अपनी एक विचारधारा है, या कांग्रेस जिसकी अपनी एक विचारधारा है. ऐसे एक स्टार्टअप की भी एक विचारधारा होती है. एंड लाइक पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच डोंट हैव दिस विचारधारा, दे आर नॉट सक्सेसफुल. So similarly, if a startup doesn't have any विचारधारा तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे. अब वो विचारधारा ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज वाली नहीं होगी. वो विचारधारा क्या होगी? दैट इज द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व. अब तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, देन सेकंड ऑब्वियसली सॉल्यूशन, थर्ड इज प्रोडक्ट. क्या बना रहे हो आप? ये जो सॉल्यूशन है दैट विल मॉर्फ इनटू अ प्रोडक्ट. एंड देन यू विल हैव अ मार्केट जहां आप प्रोडक्ट बेचोगे. मार्केट में जाके देन यू विल ग्रो एंड फाइनली यू विल हैव प्रॉफिट. इस स्टेप्स में पैरेलल में यू विल नीड फाउंडर्स, कोर टीम एंड कॉर्पोरेशन अलग अलग स्टेजेस पे. ऑब्वियसली सर्च के समय यू नीड जस्ट को फाउंडर, ड्यूरिंग बिल्डिंग यू नीड अ स्मॉल टीम, एंड ड्यूरिंग स्केलिंग ऑब्वियसली यू नीड टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन. देन फाइनली यू नीड टू हैव परचेजिंग पावर. इनिशियली एज अ स्टूडेंट या एज अ even as a new entrepreneur nobody would fund you. You have to bootstrap is basically a funding कि आपको खुद ही के पैसे यूज करने पड़ेंगे. Then when you are building, somebody may want to invest, some HNI. Those HNIs are called angel investors. तो वो angels की तरह आते हैं and they want to fund you. And then finally you have venture capitalists who will only fund you once you have product market fit. So I will now switch to my blog. I have just started a new blog जिसमें you can even download the
posters also. So many students used to ask me, sir, give us the link of the PPT or something. So I have put everything on this blog. So I am just sharing you the link also, but I would be presenting also this. Just 1 minute. So this is the URL of the blog. I will be sharing from here. जी, so सबसे पहला इशू क्या आता है, एंड स्टूडेंट्स के साथ ये और भी ज्यादा आता है कि उनको क्या होता है कि देयर पेरेंट्स आर सेइंग डू दिस, टीचर्स आर सेइंग डू दैट, एंड देन देयर विल बी अ पड़ोस वाला भैया जो आपको सक्सेसफुल लगेंगे, ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. मे बी अगर आपके पड़ोस वाले भैया गूगल चले गए हैं तो मे बी यू हैव दिस इन माइंड कि मैं भी गूगल जाऊंगा एंड आई विल हैव दिस 1 crore rupee पैकेज आ ईयर. बट क्या होता है कि डू व्हाट कैन डू ओनली दिस 4 थिंग्स. तो अगर आपने 4 चीजें सॉल्व कर दी तो आप अरबपति बन जाओगे, करोड़पति भी नहीं. व्हाट आर दिस 4 थिंग्स? डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू आर गुड एट, डू व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, एंड डू व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. तो आप विजय शेखर शर्मा को देखो, हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम. ही डज व्हाट ही लव्स, ही इज गुड एट इट, ऑब्वियसली तभी पेटीएम बनी. व्हाट ही कैन बी पेड फॉर, ही इज ऑब्वियसली वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर्स इन इंडिया, तो पेमेंट है. व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ऑब्वियसली द वर्ल्ड नीड्स अ पेमेंट सॉल्यूशन. आज से 5 साल पहले इंडिया वाज way behind in relatively in payment technologies, but आज आप देखोगे, I went last year to US and मेरे को कोका कोला पीनी थी in from a vending machine, and I realized, मैंने कहा US तो बहुत पुराना हो गया, because वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, they said कि you have to put quarters, तो मेरे पास उतने सिक्के नहीं थे कोका कोला लेने के लिए. तो I realized, मैंने कहा अगर हमारे there is a vending machine in our office in Paytm, तो मैंने कहा उसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, there is a QR code, I have to just scan and I get the item. तो पेटीएम में जो क्यूआर कोड वाली थी, दैट वाज ऑब्वियसली इजियर टू यूज देन दैट वेंडिंग मशीन इन अमेरिका. तो आई वुड से यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम व्हिच यू वांट टू सॉल्व, व्हिच पीपल वांट यू टू सॉल्व, you love and you can do good. This is called ikigai. So there is this very famous book called Ikigai. This is on long life of Japanese people, how to get a long life. But one of the aspects in this book which is covered is that you have to focus on your passion, mission, profession, vocation, and if you can get all these, you will get ikigai. You will, instead of getting blood pressure, you will work more. There you would not need a work life balance, because ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है, I want to keep my professional and personal life separate, I want a work life balance. देखिए, work life balance की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको अपना काम अच्छा नहीं लगता, जब आपको काम लगता है. When I started Build for India, तो पहले साल I was practically giving 12 to 15 hours a day. मेरी वाइफ यूज्ड टू से कि आप सुबह से शाम लगे रहते हो. आई वाज मिसिंग फैमिली ड्यूरिंग वीकेंड्स आल्सो, बिकॉज आई वाज गोइंग टू मोस्ट ऑफ दीज इवेंट्स एक्सेट्रा, और फिजिकली जाना होता था. तो सैटरडे संडे बहुत इवेंट्स में मैं जाता था, दिल्ली से बाहर भी. तो बट आई वाज नेवर थिंकिंग ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज मेरे को तो जानने में, लोगों से बात करने में एक मजा आता था. तो ऑब्वियसली वो वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत ही नहीं लगती थी. तो यू हैव टू फाइंड योर इकिगाई. सेकंड आता है व्हाई इंडिया के अंदर एक क्वेश्चन, अभी मैं आपको बताता हूँ. मैं नास्कॉम के प्रोडक्ट काउंसिल में हूँ, तो देयर वाज वन मीटिंग गोइंग ऑन. रविशंकर प्रसाद हमारे जो मिनिस्टर हैं आईटी के, वो आए, एंड ही हैड अ क्वेश्चन फॉर द काउंसिल. ही सेड, इंडिया में गूगल जैसी कंपनियां क्यों नहीं पैदा होती? तो उसके 2 आंसर थे. एक आंसर तो यह है कि न्यू एज कंपनीज लाइक पेटीएम, स्विगी, आई थिंक जैसे जैसे वो बड़ी होंगी वो गूगल बनी जाएंगी इंडिया की. दूसरा मेरा आंसर ये है कि इंडिया में क्यों नहीं बनती है, उसका एक रीजन है. बिकॉज इंडिया के अंदर कोई भी कॉलेज आपको 3 चीजें नहीं सिखाता एक साथ, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स. इंडिया में या तो आप साइंस सीखते हो, या आर्ट सीखते हो, या कॉमर्स सीखते हो. बट गुड प्रोडक्ट नीड्स हैज टू बी डिजायरेबल, इट हैज टू बी फीजिबल, इट हैज टू बी वायबल. फीजिबल मतलब इंजीनियरिंग ठीक होनी चाहिए, डिजायरेबल मतलब आर्ट ठीक होना चाहिए, डिजाइन ठीक होना चाहिए, वायबल मतलब कमर्शियली वायबल होना चाहिए. तो आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों चाहिए टू क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट, एंड यू हैव टू मेक इट डिजायरेबल फॉर द यूजर एंड वायबल फॉर द कस्टमर, तभी पीपल वुड बाय इट. आई एम स्किपिंग अ फ्यू स्लाइड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बट there is this very important concept when you are creating this product. So minimum viable product से you have to start. So just think, हम क्या सोचते हैं, we always think in this in mind कि जैसे Steve Jobs was presenting iPhone, हमारा भी एक दिन एक product होगा, हम iPhone की तरह present करेंगे on world stage. अब just see, वो Steve Jobs ठीक है करते थे, but Google, Paytm, ये companies हमेशा beta से start करती हैं, and then once things go good in beta, they scale. तो वो कभी भी आईफोन की तरह लॉन्च नहीं करती है. पेटीएम हो या गूगल हो, इवन अमेज़न को भी आपने देखा होगा, कभी
बहुत बिग बैंग लॉन्च नहीं होता, दे डू सॉफ्ट लॉन्च एंड ओनली व्हेन सॉफ्ट लॉन्च इज वर्किंग फाइन दे विल स्केल इट। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसको हम अगर इंडियन भाषा में बोलेंगे तो जुगाड़ प्रोडक्ट है। आप हमेशा एक जुगाड़ के साथ शुरू करते हो, फिर वो जुगाड़ आपका बड़ा होता है और फिर वो सबसे बड़ा होकर वो जवान जैसे बच्चा होता है फिर टीनेजर होता है, फिर दैट पर्सन बिकम्स अ जवान आदमी, उसके अंदर एक ताकत होती है। इसी तरीके से आप अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से इट विल स्टार्ट, इट विल बी लाइक अ बेबी, इट विल यू हैव टू बिल्ड मेजर लर्न, ये लूप चलती रहेगी एंड फाइनली यू क्रिएट अ प्रोडक्ट। सो दिस बिल्ड मेजर लर्न लूप इज देयर इन अ बुक कॉल लीन स्टार्टअप, जो मैंने आपको अभी बताया था। स्टार्टअप इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच बिल्ड्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस अंडर अनसर्टेनिटी, ये लीन स्टार्टअप की डेफिनेशन थी। तो आई विल बी लाइक फोकसिंग नाउ ऑन दिस स्लाइड। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन लाइफ साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जनरली वी फील कि एवरीबडी वन डे आवर प्रोडक्ट वुड कम एंड एवरीबडी वुड स्टार्ट परचेजिंग इट। ऐसा नहीं होता है। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, टू एग्जांपल्स। एप्पल का देखो, शुरू में आईफोन कोई नहीं खरीदता था, ओनली वेरी इनोवेटिव एंड वेरी टेक सेवी पीपल यूज्ड टू बाय। धीरे धीरे अर्ली अडॉप्टर्स आए जो बड़े पैसे वाले लोग थे, दे यूज्ड टू फील कि एप्पल आने से ब्रांड बनता है। Now I think early majority is buying Apple. India में तो फिर भी नहीं, पर worldwide if you see statistics, a lot of people have Apple. So early majority आ गई है, late majority अभी भी Apple में नहीं आई है and there are some people who feel कि 1 लाख रुपए का फोन खरीद के क्या फायदा है। तो obviously वो laggards हैं, they would not buy। इसी तरीके से Paytm पे आते हैं तो Paytm started around 2010 as a recharge company। तो जो शुरू में recharge कराते थे वो innovators थे। उस समय people were doing recharges through पान वाला shop and photocopier shop। But Paytm changed everything and a few innovative people started using Paytm. Then Paytm Uber के अंदर integrate हुई, तो few million early adopters जो Uber के users थे उन्होंने Paytm download करी। And then demonetization came, early majority started using Paytm, late majority अभी कोरोना में use कर रही है। Just to share you an example, मेरी wife was not using Paytm till अभी कोरोना started and she said कि जब Paytm से पे करना होता है आप पे कर दो, and she used to use debit card, but now after corona when she pays for car क्या जो पेट्रोल है, तो now she feels कि obviously giving debit card to the petrol pump guy is not safe, so she feels कि हाँ उसको Paytm use करना चाहिए। तो late majority हमेशा बाद में आएगी, after 50% of users have come, and there would always be laggards। जैसे आज भी अगर कोई Paytm को use करने में people will feel, या digital पेमेंट्स में पीपल विल फील कि नहीं मैं तो कैश से ही कंफर्टेबल हूँ। देयर आर पीपल, अभी आई नो, आई टोल्ड मेनी पीपल, मैंने कहा अगर कोरोना के अंदर वी कैन यूज जूम एंड या वी कैन यूज गूगल मीट एंड ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, बट स्टिल मेनी पीपल प्रेफर ऑफलाइन मीटिंग्स। तो वो अभी लेट मेजोरिटी या लैगार्ड्स हैं जो ऑफलाइन कर रहे हैं, अर्ली मेजोरिटी रिमोट वर्किंग ऑनलाइन में आ गई है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ साइकिल ऑफ द कर्व। And finally, there is a very important thing called product market fit, high demand, high retention, positive unit economics. When you reach product market fit, आपको फंडिंग उसके बाद ही मिलेगी। जनरली पीपल फील सर मेरा आइडिया तो बड़ा अच्छा है पर कोई फंडिंग नहीं देता। वो उसका रीजन ये है, 2 रीजन है। एक तो आप हो सकता है इंटरपर्सनल स्किल्स में वीक हो, यू आर नॉट एबल टू कन्विंस द इन्वेस्टर। सेकंड थिंग इज आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हुआ है। तो बिफोर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नोबडी वुड फंड यू। तो अगर आप किसी के पास जाते हो, सर आई हैव दिस 10,000 करोड़ आइडिया, आपके आइडिया की 2 रुपए की वैल्यू नहीं है मार्केट में, कोई आपको 2 रुपए भी नहीं देने वाला। आइडिया पे कोई नहीं देता। यू हैव टू शो अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इफ समबडी फील्स मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में दम है, दे विल वांट टू इन्वेस्ट, एंड दीज आर HNIs, एंजल इन्वेस्टर्स, जो वांट टू इन्वेस्ट। एंड अगर इफ यू वांट टू गो टू VC और बड़ी कॉर्पोरेट्स वगैरह एंड यू वांट देम टू इन्वेस्ट, दे विल ओनली इन्वेस्ट आफ्टर यू गेट हाई डिमांड, हाई रिटेंशन, हाई पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, एंड दैट इज अ वेरी बिग स्टेज इन कंपनीज लाइफ। अगर एक और इशू आता है हाउ टू प्रमोट माय प्रोडक्ट्स, तो देयर आर 3 इंजन्स ऑफ ग्रोथ एज पर एरिक रीज, जो लीन स्टार्टअप के ऑथर है। स्टिकीनेस, वायरलिटी एंड पेड इंजन ऑफ ग्रोथ। देखिए स्टिकीनेस इज लाइक Paytm, ऊपर एक बार कोई यूज कर लेता है तो बहुत रेयरली कोई डिलीट करता है। वायरलिटी इज लाइक व्हाट्सएप, एक आदमी ने यूज करी तो वो 4 कॉल लेके आता है। और पेड इंजन ऑफ ग्रोथ इज बैजूस की तरह, वो 40,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं तो 5,000 10,000 रुपए ऑब्वियसली कमीशन, मार्केटिंग एक्सपेंस और सेल्स एक्सपेंस दे सकते हैं, तो दे कैन हैव पेड इंजन ऑफ ग्रोथ। तो फाइनली लास्ट एक स्लाइड में आई वुड वांट टू शेयर बिफोर ओपनिंग अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स।
वो है फाउंडर कैनवस। तो देखिए, जब भी आपको सबसे पहले स्टार्टअप स्टार्ट करनी है, यू हैव टू हैव अ फाउंडर, यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स, हेड, हार्ट एंड हैंड। एक और इंटरेस्टिंग, आप स्टूडेंट्स हो तो आई वुड लाइक टू शेयर। तो आई वाज शेयरिंग विद माय वाइफ, मैंने कहा अगर मुझे कभी दूसरी शादी करनी हो तो मैं ये 3 चीजें जरूर देखूंगा। क्योंकि आई वाज लिसनिंग टू मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंजल इन बिगेस्ट वीसीज इन अमेरिका। उन्होंने फेसबुक में भी इन्वेस्ट किया। ही सेज कि व्हेन यू आर फाइंडिंग योर पार्टनर फॉर योर स्टार्टअप, इट इज एज इम्पोर्टेंट एज फाइंडिंग योर वाइफ। बिकॉज उसका रीजन ये है कि अमेरिका के अंदर 10 साल से पहले जनरली पीपल हैव डाइवोर्स, बट इफ योर स्टार्टअप इज सक्सेसफुल यू हैव टू लिव विद दैट पार्टनर फॉर मोर देन 10 years। तो आपको उसका क्या देखना है, हेड, हार्ट एंड हैंड। अगर वो तीनों आपसे मैच करते हैं, हेड में क्या होगा, इंटेलिजेंस है, ग्रोथ माइंडसेट है, गोल्स आपके साथ मैच करते हैं। हार्ट में दैट पर्सन हैज इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड वैल्यूज मैच योर वैल्यूज। हैंड में एक्सपीरियंस, मनी, नेटवर्क, तीनों चीजें सरस्वती, लक्ष्मी, शक्ति। आई वुड से एक्सपीरियंस इज सरस्वती, मनी इज लक्ष्मी एंड नेटवर्क इज शक्ति आजकल की दुनिया में। तो इसमें एक फाइनल चीज आई वांट टू शेयर इज इंटेलिजेंस। देखिए, आई रेड दिस बुक कॉल्ड फ्रेम्स ऑफ माइंड बिकॉज आई वाज रीडिंग सो मेनी बुक्स। जैसे मैं आई टोल्ड 100 बुक्स आई हैव रेड इन लास्ट 5 years। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड मैंने बुक पढ़ी 2017 में, एंड आई रियलाइज कि ये जो फ्रेम्स ऑफ माइंड है इसमें 8 इंटेलिजेंसेस बताई है। द ऑथर सेड IQ इज अ रॉन्ग थ्योरी। 8 इंटेलिजेंसेस होती हैं एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स में। व्हाट आर दोस 8 इंटेलिजेंस? लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मैं अभी उससे पहले आपको ये बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि आई ज्वाइंड पेटीएम इन 2017। आई सॉ विजय हैविंग ऑल दीज 8 इंटेलिजेंसेस। आई इवन टॉक टू हिज फैमिली। मैंने कहा मुझे लगता है उनमें 8वां इंटेलिजेंसेस है। एंड हिज फैमिली आस्क्ड कि आप कैसे लगता है, क्या लगता है? I gave them examples। मैंने कहा विजय में 8वां इंटेलिजेंस है, that's why he has been successful in his life। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो IQ को छोड़ो, 8 इंटेलिजेंसेस पे फोकस करो, खासकर 5 पे जो भी मैं बता रहा हूँ। लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, interpersonal intelligence is ability to convince people, intrapersonal intelligence, why am I doing this? If you want to just work for money, आप कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जो पैसे की जगह एक बड़े मकसद के लिए काम करता है। Naturalistic intelligence is the 5th intelligence, very important, ability to see future। Then we have spatial intelligence, डांस का जो kinesthetic intelligence and musical intelligence। तो वो जो लास्ट की 3 है, आई फील वो स्पेसिफिक चीजों में, अगर आपको शामक डावर बनना है, रेमो फर्नांडिस, रेमो डिसूजा बनना है, तो आपको ऑब्वियसली kinesthetic इंटेलिजेंस चाहिए। ऋतिक रोशन बनना है, या अगर आपको गुलशन कुमार बनना है, T सीरीज का होना है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस चाहिए। बट इंटरपर्सनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजय का एक मैं आपको एक लास्ट किस्सा सुनाता हूँ इन दोनों इंटेलिजेंसीज को समझाने के लिए, नेचुरलिस्टिक और इंटरपर्सनल। तो विजय 2010 की बात है। विजय टोल्ड दी बोर्ड कि वी वांट 5 crore rupees टू स्टार्ट पेटीएम। 197 आवर पेरेंट कंपनी हैड more than 100 crore rupees of valuation even at that time, but board said 5 crore रुपए हम नहीं देना चाहते पेटीएम खोलने के लिए because it's a bad idea। तो बोर्ड का ये कहना था कि पेटीएम एज एन आइडिया बोर्ड डिड नॉट लाइक बिकॉज दे थॉट कि स्मार्टफोन्स इंडिया में बहुत कम थे इन 2010, एंड दे सेड कि जिसके पास भी स्मार्टफोन है जनरली दोज पीपल हैव ब्लैक मनी, तो वो ऑब्वियसली ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट्स कोई पे नहीं करेगा। बट विजय वॉज एबल टू कन्विंस दी बोर्ड। पहले तो उनके अंदर वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी, हवा का रुख देख के उन्होंने पहचान लिया कि 10 साल के बाद एवरीबडी वुड बी यूजिंग मोबाइल पेमेंट्स। देन सेकंड थिंग, ही हैड टू कन्विंस बोर्ड बिकॉज ये आप कई बार देखोगे कि सम पीपल आर टेक्निकली वेरी गुड एंड देन दे से हमारे देश के अंदर तो कोई टेक्निकली अच्छे आदमी को फंड ही नहीं करता। बट व्हाई पीपल फंडेड विजय? विजय ने बोर्ड को कहा, विजय बोर्ड को बोले मेरे शेयर ले लो पर्सनली एंड प्लीज गिव मी 5 crore rupees फ्रॉम द कंपनी टू स्टार्ट दिस पेटीएम ब्रांड एंड पेटीएम सर्विस, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आप देखते हो कि वी हैव फॉरेन कंपेटिटर्स एंड ऑल, एंड आज पेमेंट स्पेस इज द बिगेस्ट स्पेस इन इंडिया एंड वी आर वैल्यूड मोर देन $16 billion। तो आप आज देखो जो 5 करोड़ जिस ब्रांड की औकात में थी आज $16 million हो गई है। तो आज 1 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। तो दैट इज बेसिकली यूज ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एंड बिना उसके आप एक अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन सकते, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एक छोटा सा मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। आई वाज डूइंग CA, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, लॉयर थे। आई वाज बिल्डिंग मोबाइल गेम्स। ही सेड ये क्या बकवास मोबाइल गेम बनाते रहते हो स्नीक जैसे। अपने फादर की माय फादर हैड डाइड एंड माय मदर वाज रनिंग हिज ऑफिस। तो ही सेड कि देखो तुम्हारी मम्मी CA का ऑफिस चला रही हैं, अगर तुम CA की जगह ये मोबाइल गेम बनाने में टाइम वेस्ट करते रहते हो, अगर वो मोबाइल गेम मैं छोड़ देता तो आई वुड नॉट हैव बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम ऑब्वियसली। तो मैं ऑब्वियसली एज अ CA में भी आई वुड हैव
बीन सक्सेसफुल, बट मैं इस पेडेस्टल पे एंड इतनी रिलेटिवली व्हाट आई वुड से कि एक इतना बड़े पेडेस्टल पे नहीं पहुंच पाता. तो यू नीड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बिकॉज आई वाज हैविंग दिस फेथ कि इंडिया के अंदर पीपल वुड नॉट हैव डेस्कटॉप, इंडिया में पीपल वुड हैव मोबाइल फोन्स फॉर कंप्यूटिंग, एंड वो ही हुआ जो मैंने सोचा था 2002 में. तो ऑब्वियसली अगर आप पहले सोच पाते हो, एंड व्हाई आई मेट विजय बिकॉज 2002 में आई स्टार्टेड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एंड विजय को मैं 2005 में आई थिंक मिला था, 2005 में पहली बार. तो ये सब चाहिए. तो बिकॉज वी हैव लेस टाइम, आई वुड नाउ लाइक टू ओपन इट अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, बिकॉज आई फील ज्यादा रेलिवेंट रहेगा. Thank you so much, sir, for those inspiring words and that eye-opening talk of yours. Sir, am I audible? Yes, yes. Yeah. So not only आज हमें सबको स्टार्टअप का ज्ञान मिला है, but in general जीवन का ज्ञान properly मिल गया आज. And sir, just talking about IISER कोलकाता, हमारा यहाँ जनरल विचारधारा यही रहता है कि like usually the career track of students over here goes कि we focus on the research aspect of science and then go to a graduate school and remain in academia. But last few years since the ESL started, like students have started coming up with some interesting startup ideas. मतलब वो scale up हो कि ना हो, but in general that startup culture is starting in our institute. And keeping that in the backdrop, let's start answering some of the questions posed by our students. तो पहले Abhirup. So Abhirup, you must be in touch with him. He's currently heading the operations at ESL. So he has a question for you. He's asking that like if someone has a startup idea, so one of the first steps is to do market research. So market research के लिए देखिए, मार्केट रिसर्च इज वेरी 20th century थिंग. तो 21st century में आप मार्केट रिसर्च नहीं करते. आई फील व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ कीन ईयर फॉर लिसनिंग टू द कस्टमर एंड द यूजर. तो सबसे अच्छा तरीका सोशल मीडिया है. ट्राई टू ज्वाइन सम ग्रुप्स जहाँ पर पीपल लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम बिल्डिंग एन एडटेक कंपनी, आप पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करिए, मीटअप ग्रुप ज्वाइन करिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करिए. Then second would be, अगर आप समझ लो पेमेंट की कंपनी खोलना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो मार्केट रिसर्च में यू हैव टू फोकस ऑन फ्यू कस्टमर सेगमेंट्स. तो मे बी इफ यू आर बिल्डिंग अ पेमेंट कंपनी फॉर एग्रीकल्चरल लेबर और मे बी एग्रीकल्चरल वर्कर्स, तो आपको ऑब्वियसली गांव में जाके ट्राई टू मीट 100 वर्कर्स, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट यू विल फील इज कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू दिस पीपल वो अलग चीज बताते हैं. बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. So when I joined Paytm, Vijay said Paytm built for India में I was going physically to all the corners of the country. I have been to मतलब practically West Bengal, और उसके आगे जाना रह गया. अभी West Bengal के साथ भी मैं बताऊंगा, मेरा एक इंटरेस्टिंग लिंक है. तो वो रह गया, बट वेस्ट बंगाल और उसका ईस्ट छोड़ दो तो मैं पूरे देश में सब स्टेट्स में होके आ चुका पिछले 2 साल में. तो विजय सेड कि यू आर गोइंग, आस्क पीपल 5 गुड पॉइंट्स अबाउट Paytm, 5 बैड पॉइंट्स अबाउट Paytm. तो मुझे लगा विजय एक जनरल कह रहे होंगे, मतलब बड़े लोग बड़ा बातें कई बार जनरल कर देते हैं, बट विजय गिव मी अ वेरी गुड एग्जांपल. ही सेड मैं गया जयपुर में एक ढाबे में. तो विजय वैसे यंगेस्ट बिलियनर हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स, बट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रीट फूड. तो वो ढाबे गए होंगे, तो ढाबा में जाके उन्होंने कहा भैया Paytm यूज करते हो? तो ढाबा वाला सेड नहीं भैया हम Paytm यूज नहीं करते. तो ही आस्क्ड क्या रीजन है? तो ढाबा वाला टोल्ड हिम 4 इश्यूज. ही केम, उनकी सारी टीम सीनियर लोग हैं, IIT IIM MNC से आए हुए हैं, बट ही सेड मुझे ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए ढाबे वाले के. तो Paytm में वो ढाबे वाले से जो इनपुट ली, उन्होंने वो प्रॉब्लम से रिजॉल्व करी. तो आई वुड फील कि आपको मार्केट रिसर्च नहीं करनी, आपको लोगों से बात करनी है. व्हेन यू विल टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यू मतलब मार्केट रिसर्च आप कर रहे हो, बट नॉट एज अ फॉर्मल मार्केट रिसर्च, यू आर डूइंग इनफॉर्मली and you are talking to your target audience and then they will tell you कि ये चीज ऐसे करनी है, ये हमारे इश्यूज आ रहे हैं. तो जैसे अगर एक मतलब यू मे और मे नॉट बी फैन ऑफ महात्मा गांधी, बट आप गांधी फिल्म मैंने देखी है, तो उसमें जब वो गांधी जी पहली बार हिंदुस्तान के आम आदमी से मिले, तो उन्होंने कांग्रेस वालों को ये चीज कही कि आप यहाँ पर भाषण देते रहोगे बॉम्बे में बैठ के, उससे देश आजाद नहीं हो जाएगा. और दूसरा, देश के किसान को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस वाला प्राइम मिनिस्टर बनाए या अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर बनाए, उसको तो उससे लेना देना है, मेरी आम जिंदगी पे इससे क्या फर्क पड़ेगा. तो सेम थिंग वो है कि आप हो सकता है आप एलोन मस्क हो, आप मार्स पर रॉकेट भेज रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे
जो किसान है बिहार में बैठा है उसको तो उससे लेना देना है कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे खाना मिल रहा है या नहीं, उसको मार्स में रॉकेट भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट यूज योर टेक्नोलॉजी। एंड उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सम पीपल डोंट लाइक दैट एग्जांपल, बट आप अमेरिका का देखिए। मैंने एक ट्वीट लिंक्डइन पे एक मैंने पोस्ट करी थी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज, उसकी 21 लाख व्यूज हो गए पोस्ट के। 21 लाख व्यूज। उसको पोस्ट में क्या लिखा मैंने लिखा कि एलन मस्क वाज बिल्डिंग अ रॉकेट टू मार्स, गूगल वाज डूइंग क्वांटम कंप्यूटिंग, उबर वाज डूइंग फ्लाइंग टैक्सीज, और पर सबसे बुरा हाल इस समय पूरे वर्ल्ड में किसका है, और ये 6 महीने पहले भी यही तो, और आज भी है, किसका है सबसे बुरा हाल कोविड एपिडेमिक में, किसका है? वी ऑल नो यूएसए इज द हार्डेस्ट हिट। मतलब इंडिया में 4 गुना ज्यादा लोग हैं, बट यूएसए में स्टिल वी हैव मोर केसेस इन स्पाइट ऑफ इंडिया के अंदर 8 करोड़ टेस्ट भी हो चुके हैं। नाउ यू कैन नॉट से कि इंडिया में टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बेसिकली आपको फोकस करना है एंड यूजर से बात करके, व्हाट इज हिज पेन पॉइंट और हर पेन पॉइंट, एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दैट। डोंट ट्राई टू बी वेरी फॉर्मल, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसान से, आम आदमी से, रिक्शा वाले से बहुत फॉर्मल होकर बात करोगे तो वो नहीं होगा। आपको एक आम आदमी से बात करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन, श्वेता का है, डू यू थिंक देयर इज अ ट्रांसग्रेशन इन द स्टार्टअप कल्चर इन द वर्ल्ड? पीपल वांट टू बिल्ड कंपनीज मोर फॉर मनी एंड लेस फॉर एडिंग वैल्यू। सी श्वेता, आई वुड से एंड आई फील, मतलब आई फील ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में सोशलिस्टिक एक बैकग्राउंड आई थिंक इसमें मेरे को दिख रहा है। आई डोंट नहीं, बट आई फील इसमें दो चीजें हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन इज वेरी करेक्ट। तो मनी पीपल वांट टू बिल्ड कंपनीज फॉर मनी, बट मैंने देखा है कि जो मनी के लिए कंपनी बनाते हैं, देयर कंपनीज जनरली वाइंड अप विद इन अ फ्यू ईयर्स। what I realized was what I realized was after meeting people like Vijay and hearing about Narayan Murthy and people like Bill Gates, वो मैंने देखा कि they want to change the world। तो आप चेंज दी वर्ल्ड कर रहे हो, पैसे क्यों चाहिए? तो मैं एक एग्जांपल आपको विजय शेखर शर्मा का देता हूँ। तो विजय शेखर शर्मा का मैंने उनको 15 साल से देखा एज अ प्रोफेशनल। देन जब आई ज्वाइन पेटीएम तो आई हैड सम चांस ऑफ मीटिंग हिज फैमिली। तो मैंने देखा, तो जनरली जब मैं पहली बार उनके घर गया तो आई हैड दिस इन माइंड, मैंने कहा बिलियनियर तो एंटीला में रहते हैं, एक जनरल थॉट प्रोसेस यही था। तो मैं जब विजय के घर पहली बार गया और मैं एक आध घंटे उनके साथ बातचीत करके आया विजय से, तो आई रियलाइज, मैंने कहा ही लिव्स लाइक अ, ऑब्वियसली मतलब ही लिव्स लाइक अ अपर मिडिल क्लास फैमिली, एक अच्छी फैमिली आई वुड से, बट वो एंटीला वाली चकाचौंध मुझे कहीं दिखाई नहीं देती थी। मतलब वो बिलियनियर के हिसाब से बड़ा सादा जीवन में हुआ। मतलब ठीक है, आप अपने आम आदमी से कंपेयर करोगे तो यू विल से कि कार रखी हुई है या एसी चला रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको लगेगा, बट एक वो अपर मिडिल क्लास फैमिली में कॉमन होता है, एसी कार ये सभी की बात होती है। तो आई वुड से कि तो विजय को मैंने देखा, ही इज नॉट वर्किंग फॉर मनी। उनका एक पैशन है कि वेस्ट वालों से आगे जाना है इंडिया को। उनकी एक सोच है कि एशियन सेंचुरी है, 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी है, उनकी एक सोच है। तो आई फील देयर आर पीपल लाइक हिम। तो मेरा हमेशा मानना है कि मैं कॉन्फ्रेंसेस में मेरा बड़ा पैशन होता था बिलियनियर से मिलने का। तो मेरे फादर सुनील भारती मित्तल को जानते थे। आई मेट हिम इन वन कॉन्फ्रेंस एंड आई हैड द गुड फॉर्च्यून टू टॉक टू हिम फॉर 15 मिनट्स। तो आई सॉ वो भी बड़े डाउन टू अर्थ है। तो मैंने विजय को देखा एंड सुनील भारती मित्तल को देखा, दे ऑब्वियसली दे हैव मनी, दे लिव अ रिलेटिवली लैविश लाइफस्टाइल इंडिया के कंपैरिजन में आप करोगे तो, बट रिलेटिवली स्पीकिंग दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। तो दे आर वर्किंग फॉर अ बिग कॉज। अब उसमें क्या होता है कि पैसे इसलिए चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली व्हाई आई एम वर्किंग इन दी कंपनी, बिकॉज अगर सैलरी देगी तभी मैं काम करूंगा। तो अगर आज पेटीएम फंडिंग नहीं लेगी या पैसे नहीं कमाएगी तो ऑब्वियसली मेरी सैलरी कैसे देगी? तो आई फील वो पैसा जब तक आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो तो यू आर नॉट क्रोनी कैपिटलिस्ट। पैसा सोचना इज नॉट बैड। तो वो वैसा है जैसे आप महाभारत में कृष्ण जी कहते थे कि युधिष्ठिर तुम चक्रवर्ती बन जाओ, तुम जीत जाओ। एंड युधिष्ठिर यूज्ड टू से कि आई कैन बिकम एन एसेटिक, मैं संन्यास लेने में ही खुश हूँ, मेरे को राजा बनने का कोई शौक नहीं है। तो देन कृष्ण जी यूज्ड टू से कि आप राजा इसलिए बनो बिकॉज अगर आप नहीं राजा बनोगे तो दुर्योधन राजा बनेगा, और दुर्योधन राजा बनेगा तो क्या होगा देश का हाल आपको पता है। तो आपको ये समझना है कि वो जो स्कैमस्टर बिलियनियर्स हैं, जो 2-3 अभी वो नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी लोग आ रहे हैं, तो वो फेमस, वो जो इनफेमस है आई वुड से,
आप अगर वो लोग क्या हो गए तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म आप उनके ऊपर इल्जाम लगा सकते हो। इवन वहां भी आई डोंट नो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बिकॉज मैंने पर्सनली एज अ सीए आई हैव सीन बड़ा लीगली कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को भी आप ब्रांड कर सकते हो कि उसने खराब काम किया है, बट आई डोंट नो खराब है नहीं। बट आई फील जो जब आप अच्छे बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को देखोगे, नारायण मूर्ति, विजय शेखर, इन सबको, तो यू विल फील कि ये विजय गोज इन इकोनॉमी क्लास इन इंडिगो के अंदर जाते हैं। जब वो इंडिया में जाते हैं कहीं भी इकोनॉमी क्लास में जाते हैं। नारायण मूर्ति भी इकोनॉमी में जाते हैं। मैंने तो इवन यहाँ पे सुना रतन टाटा भी इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो अगर ये लोग इकोनॉमी में जा रहे हैं तो फिर ये अरबपति क्यों हो रहे हैं? ये अरबपति सिर्फ इसलिए हो रहे हैं बिकॉज दे वांट अ बिग कैनवस। अब उसके लिए दे वांट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, और उनको सैलरी देने के लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए। तो वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धि कांता मिश्रा का है, हाउ टू क्रिएट अ रेवेन्यू मॉडल फॉर अ सोशल स्टार्टअप। सर इसका थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ आपको। आई वाज जस्ट अ बिट कंफ्यूज बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन हाउ एनजीओज ऑपरेट एंड हाउ अ सोशल स्टार्टअप ऑपरेट्स। एंड इन जनरल सर यूजुअली स्टार्टअप्स एक सोशल इशू को लेके ही सॉल्व करके फिर एक कंपनी बिल्ड होता है। तो व्हाट मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है। जैसे पेटीएम का एक एग्जांपल देता हूँ, और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मे बी लाइक ग्रामीण बैंक। मैंने ग्रामीण बैंक पे थोड़ा बहुत ही सुना है, बट ब्रॉडली जो मैं एक बार मिला था ग्रामीण बैंक के फाउंडर से, तो एक बताता हूँ आपको। तो पेटीएम व्हेन इट्स थिंक्स अबाउट हेल्पिंग द कॉमन मैन कि हम 50 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट देंगे, तो वी आर थिंकिंग इन अ प्रॉफिटेबल वे। तो एक छोटा सा एग्जांपल, मेरी एक बार, ये मेरी पर्सनल बात हुई थी एक बार विजय से। तो मेरे घर में एक डोमेस्टिक कुक थी। तो शी यूज टू, अभी मतलब उसने क्या किया, उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया एट 5% फीस एंड 32% इंटरेस्ट रेट। एंड वो 1 लाख लेके उसने क्या करा, उसने सोनी का ब्राविया टीवी लिया, एक उसने फ्रिज लिया। एंड उसको जब हमने कहा भी कि तुम शाओमी का टीवी ले लो, वो सस्ता है सोनी ब्राविया से, तो शी सेड नहीं, मैं घटिया टीवी नहीं लेती। उसकी थिंकिंग। तो आई टोल्ड दिस स्टोरी टू विजय एंड आई सेड क्या ऐसा कुछ है कि हम इस लेडी को हेल्प कर सकते हैं? तो व्हाट ही सेड वाज कि अगर आज हम एआई यूज करके वी कैन गिव हर क्रेडिट एंड मे बी 18% पे भी अगर आप क्रेडिट उसको दोगे, तो आज तो उसको 32% मिलता है ना, तो आप उसको 14% इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। तो पेटीएम जब भी क्रेडिट देगा तो इट विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल, इट वुड नेवर गिव एट लॉस। मतलब अगर आप मार्केट से 12% पे पैसे लोगे तो आप 18 ही पे दोगे, 12-14 पे दोगे, 15 पे दोगे, तो आप कभी भी 10 पे नहीं दोगे। तो व्हाट हैपेंस विद सम ऑफ द एनजीओज इज कि वो गवर्नमेंट से फंडिंग लेती हैं, तो दे कैन गिव बिलो कॉस्ट ऑल्सो। तो या फिर कई बार उनका एम ही होता है, जैसे बिल गेट्स इज गिविंग फ्री वैक्सीन। सबको कई मेनी पीपल हैव दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बिल गेट्स के प्रति वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां निकालते रहते हैं, बट मैं बड़ा उनका फैन हूँ। आई फील कि अगर वो कोरोना की वैक्सीन विच आई हर्ड अभी रिसेंटली इन न्यूज़पेपर की 250 रुपए की शायद एक वैक्सीन वो खरीद रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट से, इट वाज नाउ दैट अमाउंट। तो जस्ट सी कि वो 250 रुपए की वैक्सीन खरीद के फ्री में देंगे लोगों को। 250 रुपीज में वैक्सीन लेंगे अराउंड दैट प्राइस एंड ही विल गिव इट फॉर फ्री। बट अगर आप पेटीएम के केस में होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप 250 रुपए की वैक्सीन खरीद के 260 रुपए की देते हैं, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते। यू विल बी डूइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जियो करता है कि यू आर डूइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे पेटीएम करता है कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल कहीं और से निकल जाता है। अच्छा, राइट। तो आप जैसे मतलब पर आप बिलो कॉस्ट नहीं देते। मतलब आप हो सकता है एज अ प्रमोशनल स्कीम आप बिलो कॉस्ट दे दो, बट लॉन्ग रन आप बिलो कॉस्ट। एनजीओ है जैसे बिल गेट्स है, अगर उनको 10 करोड़ वैक्सीन लगानी है तो 10 की 10 करोड़ पे 0 रुपए लेना चाहते हैं ना। ही डजंट वांट टू अर्न एनीथिंग, उनको तो देने हैं, लेने नहीं है। तो फर्क ये हो जाता है कि एक अच्छी स्टार्टअप को लोगों का ध्यान होता है एंड दे वांट टू अर्न आल्सो, बट अर्न इन अ पॉजिटिव वे। तो आप 100 रुपए की चीज बना रहे हो, 105 की बेच रहे हो, उसमें आपको कोई इल्जाम नहीं लगाएगा क्रोनी कैपिटलिज्म का, वो है। और एक एनजीओ होता है वो 100 रुपए की चीज लेके 50 रुपए में दे रही है। उसमें स्टार्टअप का रोल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज स्टार्टअप्स आर एबल टू स्केल टू मिलियंस ऑफ पीपल। और वो एनजीओ स्केल क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उसके साथ हमेशा प्रॉब्लम पैसे की आ जाती है कि वो पैसा आपने 50 रुपए का माइनस चल रहे हो, तो 1 लाख लोगों को दिया तो 50 लाख माइनस हो गया, तो आपको ना फंडिंग नहीं मिलती। तो आई वाज रनिंग दिस फंड टू डू लैब ओपन एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो मैंने सोचा है कि मैं कभी भी अगर पेटीएम छोड़ूंगा ना तो आई विल रन दिस कमर्शियली इंस्टेड ऑफ एज एन एनजीओ, बिकॉज मैंने इतने साल में ये रियलाइज किया कि एज एन एनजीओ ना आपको प्रैक्टिकली वो मतलब मैंने ये सेमी एनजीओ चला के फंड टू डू लैब्स में देखा कि आपको ना हर एक से पैसे मांगने पड़ते हैं। एंड वो पैसे ना कंज्यूमर से लेने मुझे पर्सनली लगे ज्यादा आसान है देन आप गोइंग टू डोनर्स, बिकॉज डोनर्स के अपने
tantrums होते हैं. Yeah. So with that, I would like to go to the next question. So Yusuf has a question. My question is, how do we know whether an idea is viable to initiate a startup? Like, how do I know it's? देखिए, जो अच्छे फाउंडर्स होते हैं ना, उनको वायबिलिटी, एक तो जैसे मैंने बताया, दे हैव नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, तो उनको एक विजन होता है. जैसे हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो उनका एक विजन होता है. विजन ये होता है, जैसे विजय का विजन था कि उनको ये लगता था कि पीपल वुड बी डूइंग मोबाइल पेमेंट्स आफ्टर 5 years. तो वो एक विजन होता है. बट ऑब्वियसली एक तो पहले तो आपको एक स्टोरी सोचनी पड़ेगी दिमाग में कि क्या ये हो सकता है या ये मैं हवा में सोच रहा हूँ. अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. मैं आपको एक बहुत क्लियर एग्जांपल बताता हूँ. आपने ऑनलाइन एजुकेशन देखी होगी. पीपल डोंट लाइक ऑनलाइन एजुकेशन. आजकल बच्चे आप देखते हो ऑनलाइन जूम से नहीं पढ़ते. तो मेरा ये काफी टाइम से है कि जूम से पढ़ाई, ऑनलाइन एजुकेशन वुड नॉट बी स्केलेबल थ्रू जूम. ऑनलाइन एजुकेशन वुड बी स्केलेबल थ्रू डोरेमोन. आप देखो मेरे बच्चे क्या करते हैं. मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में है, सुबह से शाम डोरेमोन देखते रहते हैं या वीडियो गेम खेलते रहते हैं, और तो कुछ काम है नहीं, आजकल छुट्टियां हैं. तो आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो गेम्स के थ्रू या डोरेमोन के थ्रू करा सकते हो. अब ये मेरे को एक आइडिया वर्थ द रिस्क लगता है. अगर मैं कभी जॉब छोड़ूंगा तो मैं यही काम करूंगा. तो अब मैं ये वैलिडेट कैसे कर सकता हूँ? वैलिडेट करने के 2-3 तरीके हैं. एक तरीका तो यह है कि टॉक टू 100 पेरेंट्स, एंड अगर लोग कहते हैं हाँ हमें भी लगता है, हमारे बच्चे भी यही करते हैं और यही प्रॉब्लम है, एंड वी आर विलिंग टू पे. वो जो ये था कि वर्ल्ड नीड्स इट एंड दे आर विलिंग टू पे. अगर पेरेंट्स कहते हैं मैं 100 रुपए देने को तैयार हूँ ऐसे डोरेमोन के लिए, जो जिसके थ्रू मैं बच्चे को पढ़ाई करा सकता हूँ, तो आप आज डोरेमोन को न्यूसेंस मानते हो, पर डोरेमोन के अंदर अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरी बेटी अभी पीछे बोली, पापा वोल्केनो ये होता है ना जिससे वो लावा निकलता है. तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? 6 साल की है वो. एंड शी सेड वो डोरेमोन में देखा था मैंने. तो ये जो चीजें होती है ना, जैसे आप बचपन में याद करो, आप चाचा चौधरी पढ़ते थे या चंपक पढ़ते थे, उनसे हमने बहुत चीजें सीखी. तो वो एजुटेनमेंट एक एग्जांपल. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि वेदर द यूजर और कंज्यूमर लाइक्स. तो मैंने पिछले 6 महीने में बड़ा क्लियरली देखा, मेरे बच्चे सिर्फ 2 ही काम करते हैं, या तो वो गेम खेलते हैं या स्टोरी देखते हैं, और कुछ तीसरा काम ही नहीं करते वो प्रैक्टिकली. कभी कभार वो कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, ये तीसरा काम ही है, और कुछ नहीं करते बच्चे. तो यू हैव टू बी वेरी कन्विंस्ड कि यूजर 100 यूजर को आपने देखा, ऑब्जर्व किया, तो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या इश्यूज हैं. कंज्यूमर 100 हैं, वो क्या कर रहे हैं. कंज्यूमर इज समबडी हु पेज, यूजर जो यूज करता है. जैसे अगर बैजूस के केस में बच्चा यूजर है और कंज्यूमर माँ बाप है, तो आपको वो समझना है. दूसरा देखिए, कमर्शियल वायबिलिटी आपको ब्रॉडली समझनी है कि अगर मैं मोबाइल गेम बना के बच्चे को पढ़ाऊंगा, तो मोबाइल गेम बनेगा समझ लो 1 करोड़ में. एक एग्जांपल है, 1 करोड़ में मोबाइल गेम बना और कल को वो 1 करोड़ यूनिट बिक गए, तो 1 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आई ना. बट अगर मैं बेचूंगा तो मिनिमम 10 रुपए का तो बेचूंगा, तो 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा. तो ऑब्वियसली 9 करोड़ रुपए का बीच में गैप है. तो देयर इज अ वायबिलिटी. इसकी जैसे अभी कल ही मेरी वाइफ, आई रन दिस फन टू डू लैब ओपन एजुकेशन प्रोजेक्ट. तो माय वाइफ सेड कि शी वांटेड टू बिल्ड टी-शर्ट्स फॉर किड्स, जिसमें आप टी-शर्ट्स के थ्रू ABCD और बहुत सारे एजुकेशनल टॉपिक सिखा सकते हो. तो शी वाज कैलकुलेटिंग, शी सेड 100 रुपए बचेंगे सिर्फ एक टी-शर्ट पे. तो अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं तो 1000 टी-शर्ट बेचनी पड़ेगी. अब 1000 टी-शर्ट बेचना कोई आसान काम तो है नहीं. तो वहां वायबिलिटी का इशू आ जाता है कि अगर मेरे को ऑनलाइन बेचना होता तो ऑब्वियसली 1000 आसान है, बट अगर फिजिकली बेचना है तो 1000 बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो आपको कई एंगल से सीखना है. इज इट डिजायरेबल, वायबल, फिजिबल, हर एंगल से. एंड एक स्टोरी सोचनी है कि इज इट पॉसिबल और नॉट. मैंने देखा जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में एक स्टोरी चल रही होती है. जैसे विजय को मैंने देखा है, ही हैज अ विजन. आप मुकेश अंबानी से मैं मिला नहीं हूँ कभी, बट उनका आप कभी इंटरव्यू देखोगे तो ही हैज अ विजन. मतलब वो बात इस तरीके से करते हैं, ही हैज अ क्लियर विजन. नरेंद्र मोदी के आप फैन हो सकते हो, आप उनके अगेंस्ट हो सकते हो, बट ही हैज अ विजन. अब वो अच्छा है बुरा है वो आपके कमेंट हो सकते हैं, बट ही हैज अ क्लियर विजन. तो वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े आदमी का. एंड दैट्स व्हाई दे हैव दिस क्लैरिटी टू टेक मिलियंस ऑफ डिसीजंस टू जस्टिफाई व्हाट दे आर डूइंग. नहीं तो आप देखोगे आम आदमी ना कंफ्यूज रहता है. मैं बहुत स्टूडेंट से पूछता हूँ व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, 90% है सर हमने कभी सोचा ही नहीं गोल क्या लाइफ में. तो ये एक प्रॉब्लम है जो यू हैव टू वैलिडेट योर आइडिया थ्रू दैट क्लैरिटी. फिर आते हैं साई सुनील का क्वेश्चन है, हाउ डू आई डिटरमिन वेदर और नॉट आई एम कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. देखिए, अगर आप पैशनेट हो और आपके अंदर, जैसे मैंने बताया, 8 इंटेलिजेंस में से 2 इंटेलिजेंस बड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं एक स्टार्टअप के लिए, नेचुरलिस्टिक और इंटरपर्सनल. तो अगर आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, अब इंटरपर्सनल स्किल्स का क्या मतलब होता है कि आप कन्विंस कर पा रहे हो अपने साथ वाले को कुछ भी कराने के लिए. बहुत छोटा सा इंटरपर्सनल स्किल देता हूँ. आपके घर में आपको भूख लग रही है रात के 11 बजे, क्या आप अपनी मदर को कन्विंस कर पा रहे हो, या वाइफ को, बहन को कन्विंस कर पा रहे हो खाना बना दो, या
मे बी आप खुद अब आप खुद बनाओगे तो ऑब्वियसली इंटरपर्सनल स्किल नहीं होगा, बट अगर आप खुद को कन्विंस करके बनवा पा रहे हो तो ऑब्वियसली इंटरपर्सनल स्किल है। तो यू हैव टू स्किल्स, एक तो आप बिल्ड कुछ कर सकते हो, दूसरा यू हैव द स्किल टू सेल। इफ यू कैन बिल्ड समथिंग एंड यू कैन सेल समथिंग, तो देन यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन। अगर आप बिल्ड भी नहीं कर पा रहे हो, सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रेडिंग में भी आप कर लोगे एज अ बिजनेसमैन, पर एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाओगे। एक बिजनेसमैन बन के आप ट्रेडर बन जाओगे। बट अगर आप सेल भी नहीं कर पा रहे हो और बिल्ड भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं जाना चाहिए, फिर गो इन टू जॉब। खासकर अगर आपको सेल करने की बिल्कुल आदत नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में आपको सेल नहीं करना पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। तो वो डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज ये मैंने काफी लेट सीखा अपने पर्सनल उसमें एक्सपीरियंस में कि सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ बिग बिजनेसमैन। तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, डियर सर, आई सपोज आई वांट टू स्टार्ट अ सर्विस, बट बिफोर दैट आई शुड नो द स्टैटिस्टिक्स, राइट? दैट मींस सर्विस इज रियली नीडेड फॉर पीपल और नॉट। आई एम आस्किंग। देखिए, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वेरी कन्विंस कि अगर मैं आज पेटीएम में नहीं होता तो मैं 100% एजुकेशनल मोबाइल गेम्स बना रहा होता, या मैं एजुकेशनल कंटेंट बना रहा होता। उसका रीजन बड़ा क्लियर है। ऑब्वियसली मैं पहले पेटीएम से पहले आई वाज रनिंग एजुकेशनल स्टार्टअप, तो ऑब्वियसली आई हैड दिस विजन दैट टाइम आल्सो। बट अब वो क्या होता है कि आई हैव नॉट डन अ मार्केट रिसर्च, आई हैव नॉट गॉन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड टॉक, बट मैंने ना, एक होता है थिक डेटा, एक होता है स्मॉल डेटा, और एक होता है बिग डेटा। बिग डेटा इज स्टैटिस्टिक्स कि ठीक है, आपने 10,000 लोगों से जाके पूछा या 10,000 लोगों के एनालिटिक्स देखे जो गूगल वगैरह करते हैं। एक होता है स्मॉल डेटा, टॉक टू 5 पीपल एंड ट्राई टू गेट क्वालिटेटिव डेटा। एक होता है थिक डेटा, 24 घंटे रहो 5 आदमियों के साथ। तो मैं अपने बच्चों के साथ 24 घंटे रहा, मैंने देखा कि मेरे बच्चों को सुबह से शाम यही 3 काम करने। तो अगर आप उसको जूम से पढ़ाई कराओगे तो मेरा बेटे ने तो पढ़ना ही नहीं है, बट आप उसको हो सकता है डोरेमोन के थ्रू पढ़ाई कराओगे तो वो कर देगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल ये है। तो स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए, यू हैव टू टॉक टू एटलीस्ट 5 पीपल। आई एम नॉट सेइंग एक से बात करो, आपने 5 लोगों से बात करी, अगर 5 में से 3-4 लोग कह रहे हैं कि ये चीज में दम है या दे वांट टू पे फॉर दैट थिंग, तो फिर आप ठीक हो। यू डोंट हैव टू टॉक टू 100 पीपल और 500, बट ऑब्वियसली इफ यू कैन स्केल इन टॉकिंग टू पीपल तो 100 से बात करोगे तो सेफर है, बट मिनिमम टॉक टू 5 पीपल। तो स्टैटिस्टिक्स ज्यादा नहीं चाहिए, यू डोंट नीड वो कार्ल पियर्सन का मेथड या वो रिग्रेशन और वो सब चीजें नहीं चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन, वो सब कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ 100 लोगों से बात करो, एक एक्सेल शीट बना लो, व्हाट क्वालिटेटिव इनपुट दे गिव एंड यस नो व्हाट दे सेड, आप वो सिर्फ उसका ले लो, और 5 मिनिमम के साथ आप क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करो। देखो कि वो अपने घर में कैसे यूज करेंगे वो प्रोडक्ट, हाउ दे विल यूज, इफ इट्स अ B2B प्रोडक्ट तो ऑफिस में वो कैसे यूज करेंगे, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। How do we overcome financial barriers to start up while at college? देखिए, फाइनेंशियल बैरियर इज देयर, बट कॉलेज इज द इजीएस्ट प्लेस टू स्टार्ट। आप देखोगे विजय शेखर शर्मा, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सब कॉलेज में एंटरप्रेन्योर्स बने। व्हाट वाज द रीजन? कॉलेज में क्या होता है कि यू हैव एक्सेस टू डॉर्मेट्री, यू हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर लैब, यू हैव एक्सेस टू रिलेटिवली हाई स्पीड इंटरनेट होता है काफी सारे कॉलेजेस की लैब्स में। तो कॉलेजेस में टीचर्स का सपोर्ट होता है, कॉलेजेस में मेंटर्स आते हैं हमारी तरह, तो कॉलेजेस में ना नेटवर्किंग भी आसान होती है। तो इंडिया के अंदर आई वुड से या तो आप कॉलेज में एंटरप्रेन्योर बनो या 40 साल में एंटरप्रेन्योर बनो। 40 साल में एंटरप्रेन्योर बनोगे, और खासकर अरेंज मैरिज अगर करनी है फिर तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। अरेंज मैरिज में तो एंटरप्रेन्योर बनने का बड़ा नुकसान होता है। तो व्हेन आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, तो एक बैरियर तो होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए तो ट्राई टू फोकस ऑन लीन स्टार्टअप, ट्राई टू फोकस ऑन कि कम से कम पैसे यूज करें। लीन स्टार्टअप इज अबाउट यूजिंग लेस मनी, ट्राई टू स्टार्ट विद अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अगर आपका थोड़ा सा भी चल जाता है तो यू विल गेट फंडिंग, तो आपको पैसे घर से कम लगेंगे। दूसरा क्या होता है कि यू कैन रेंट इंस्टेड ऑफ ओनिंग थिंग्स। तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ना फाइनेंशियल बैरियर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, वो आपकी पर्सनल लाइफ में होता है। तो क्या होता है कि अरेंज मैरिज में ये स्टिग्मा होता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं कमाता, इसकी जगह कोई जॉब कर रहा होता है या बिजनेस कर रहा होता है ज्यादा कमाता। आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो इनिशियली कुछ इनकम होती नहीं है, तो ये एक स्टिग्मा आपको फैमिली का और आपको एक थोड़ा अपना सोशल सर्कल का स्टिग्मा देखना होता है। बट आई वुड से इफ यू आर इन कॉलेज वो कुछ भी नहीं होता। उसका रीजन है कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर फ्री फॉर 2-3 आवर्स एवरी डे, यू कैन डू अ पार्ट टाइम स्टार्टअप, एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली कॉलेज इतने खत्म हो जाता है, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब यू कैन ऑलवेज गो टू पेरेंट्स की पापा मैं 50,000 रुपए महीना अपने स्टार्टअप से कमा रहा हूँ, जॉब भी करूंगा तो 50,000 रुपए महीने ही आएंगे या 1 लाख आएंगे, तो आई फील की जॉब से बेटर है स्टार्टअप, एंड दे विल अंडरस्टैंड। बिकॉज कॉलेज में क्या होता है, पेरेंट्स डोंट एक्सपेक्ट एनी मनी फ्रॉम यू,
तो कॉलेज इज इजियर फ्रॉम दैट एंगल. ऑब्वियसली फाइनेंशियल बैरियर होते हैं, तो देयर आर इंक्यूबेटर्स विच वांट टू फंड यू. अभी मैं आपसे पहले जो मेरा अभी एक और इवेंट था फ्रॉम 3 to 4 with IIM Kashipur, so these kind of incubators are there in IIMs, IITs और other colleges में, तो पेमेंट भी देते हैं आपको. आई एम पार्ट ऑफ द DS डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एंटरप्रेन्योरशिप की कमेटी है नेशनल, आई एम पार्ट ऑफ दैट. तो वी गिव लॉट ऑफ फंडिंग टू लॉट ऑफ इंक्यूबेटर्स. तो इंक्यूबेटर्स आपको 5 लाख से लेकर 25-30 लाख डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप, व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर डूइंग, दे देते हैं. तो आई फील वो मिल जाएंगे आपको, वो कॉलेज में भी मिल जाते हैं. तो आई मेट अ गर्ल इन, शी वाज स्टडीइंग इन एमिटी. तो उसको एमिटी इंक्यूबेटर ने 5 लाख रुपए दिए थे. शी सेड सर 5 लाख रुपए में क्या स्टार्टअप खोलूंगी, 5 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं होता. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है वर्ल्ड में, पैसे या टाइम? शी सेड टाइम. तो मैंने कहा तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, विजय के पास ज्यादा टाइम है. विजय ऑब्वियसली आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर है. तो मैंने कहा देखो 5 लाख रुपए तुम एमिटी से पास का आउट करके निकलती, फर्स्ट जॉब कितने की निकलती? 5-6 लाख की निकलती. वो 6 की भी लगती तो 1 लाख रुपए टैक्स देके 5 ही लाख आते हैं. अब तुम्हें 5 लाख टैक्स फ्री मिल गए. अब तुम 5 लाख रुपए के साथ पूरे साल अपने काम पे फोकस कर सकती हो, जो विजय भी नहीं कर सकते. मतलब विजय को भी अगर आज एक नया बिजनेस खोलना हो तो उनको पहले 80% टाइम एग्जिस्टिंग बिजनेस पे देना पड़ेगा और 20% नए पे देंगे. मैंने कहा बट तुम्हारे पास तो 100% टाइम है ना. ना कोई फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि 5 लाख रुपए मिल ही रहे हैं अपनी सैलरी के लिए. तो शी अंडरस्टूड दैट एंड शी सेड सर इसका मतलब है कि आई कैन आइटरेट अ लॉट. इन द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी यही है, ट्राई टू आइटरेट अ लॉट, ट्राई टू लर्न अ लॉट इन फर्स्ट 1 year. एंड MVP बनाने के लिए आपको जो इनिशियली चाहिए वो 2-4 लाख ही चाहिए होते हैं आपको. देखिए ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत सस्ता बन जाता है, टाइम की वैल्यू है. टाइम एज अ स्टूडेंट होता है, या जैसे मैंने बताया 5-6 लाख की अगर फंडिंग मिल जाती है तो पेरेंट्स आर हैप्पी कि चलो घर का खर्चा तो हमसे नहीं ले रहा है. एंड दे आर मतलब देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स. जैसे मेरी मदर थी तो शी यूज्ड टू से कि अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो अगर आप अपना खर्चा निकाल पा रहे हो ना तो शी वाज हैप्पी. शी सेड पड़ोसी का बेटा क्या कमा रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट तू अपने पैरों पे खड़ा है ना, मतलब चाहे 10,000 तेरा महीने का खर्चा है वो खुद निकाल ले कॉलेज के बाद. शी वाज हैप्पी. तो अगर उस टाइप के पेरेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स इस टाइप के हैं, जैसे कि पड़ोसी वाले शर्मा जी का बेटा तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है इस कंपनी में और तू 25,000 ही कमा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ऐसे पेरेंट्स के साथ आपको बड़ा मुश्किल रहेगा एंटरप्रेन्योर बनने में. हाउ टू वैलिडेट यूर आइडिया? देखिए वही आई थिंक पहले भी हमने किया. वैलिडेट करने के 2 ही तरीके हैं. एक तो आप MVP बनाइए, तो अगर आपकी फिजिबिलिटी तो MVP से ही पता चल जाएगी. एंड डिजायरेबिलिटी, व्हेन यू ट्राई टू शेयर दिस MVP विद पीपल, डिजायरेबिलिटी पता चल जाएगी. व्हेन यू ट्राई टू सेल योर MVP तो आपको वायबिलिटी पता चल जाएगी. तो आई फील आपको वैलिडेट करना चाहिए आइडिया MVP बना के, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. दूसरा, यू हैव टू बिफोर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ट्राई टू टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन and try to understand qualitatively. तो Henry Ford used to say कि अगर मैं लोगों से पूछता कि should I make a horseless carriage, तो should I make a car, तो they would have said नहीं कार नहीं बनाओ. तो कार को कार नहीं कहते थे, वो उसको horseless carriage कहते थे. तो लोगों को समझ ही नहीं आता हेनरी फोर्ड बात क्या कर रहे हैं. सेम स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर मैं आईफोन लोगों से पूछ के बनाता तो they would have said कि नोकिया के फोन को थोड़ा सा अच्छा कर दो. तो लोगों से आप पूछो क्वालिटेटिवली व्हाट इज द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व. तो आईफोन बनने से पहले भी मैं क्या कहता है, आई वुड हैव सेड कि मेरे को एक ऐसा फोन चाहिए जो लैपटॉप की तरह काम करे. तो आईफोन इज प्रैक्टिकली सच अ फोन जो लैपटॉप की तरह काम कर रहा है. आप ईमेल चेक कर पा रहे हो, ब्राउजिंग कर पा रहे हो. जो नोकिया के फोन, आई थिंक यू पीपल आर रिलेटिवली यंग, हम अभी बुढ़े तो नहीं हुए, बट ऑब्वियसली 2005-6 में अगर जाओगे 15 साल पहले तो बहुत घटिया फोन होते थे. उनमें अगर आपको जीमेल चेक करना होता था तो बहुत बड़ा काम लगता था अपने आप में. तो वो था. तो do we have 2-3 minutes if you have? Yes sir, I guess we can go on till 5:10, 5:15 maybe. If you are free we can probably extend till then. तो I would like to share one thing. I think वो एक चीज रह गई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. एक सेकेंड. So we are giving free payment gateway to startups. So I will like to share that. अगर आप में से कोई भी स्टार्टअप खोल के बैठा हुआ है तो you can write to me and we can give you free payment gateway. थोड़ा सा स्टूडेंट्स कम खोलते हैं इसलिए आई एम सेइंग कि कोई बैठा होगा, सब नहीं होंगे. 0% कमीशन वी चार्ज ऑन फर्स्ट 1 लाख रुपीज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर फर्स्ट 12 months. ये पेटीएम इन जनरल नहीं देता है वेबसाइट पे. दिस इज अ इनवाइट ओनली पेटीएम बिल्ड फॉर इंडिया प्लान. तो अगर आपको फ्री पेमेंट गेटवे चाहिए यू कैन राइट टू मी. दूसरा, वी हैव अ फ्री
वी हैव स्टार्टेड अ मिनी ऐप प्रोग्राम जिसका कल लॉन्च हुआ है. आई थिंक आपने शायद मीडिया वगैरह में देखा होगा, पेटीएम मिनी ऐप. तो अगर इफ यू वांट टू गेट ऑनबोर्डेड ऑन पेटीएम मिनी ऐप स्टोर, you can write to me. I will just share a second details of that also. तो ये आप देखिए पेटीएम मिनी ऐप स्टोर, 15 करोड़ जो पेटीएम के एक्टिव यूजर्स हैं वो आपको मिलेंगे. एंड यू कैन रब शोल्डर्स विद कंपनीज लाइक डोमिनोज एंड एमएनजी वगैरह. एंड वी चार्ज, अनलाइक गूगल एंड एप्पल, वी चार्ज दिस ओनली फ्रॉम द कंपनी. तो इन दोनों के लिए आप मुझे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं. मेरा माय ईमेल एड्रेस इज saurabh3.jain. जॉब रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, आई एम नॉट इन एचआर. saurabh3.jain@paytm.com. आई एम ऑन सोशल मीडिया @skjsaurabh. तो ये मेरे कॉन्टैक्ट हैं, तो आप मेरे को भेज सकते हैं. आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू फ्री पेमेंट गेटवे, और आई वुड बी हैप्पी टू गेट यू ऑनबोर्डेड फॉर मिनी ऐप. तो विद दैट आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक नीचे से ले लेते हैं. ठीक, तो एक अतुल का है, सर सिंस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर इन अर्लियर इयर्स ऑफ कॉलेज, व्हाट हैबिट्स, स्किल्स, नॉलेज दे शुड एक्वायर टू गेट देमसेल्फ रेडी. तो मैं मैंने वो जो 200 बुक पढ़ी थी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ 200 बुक जो मैंने पढ़ी हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन मीडियम. तो ये लिंक है 200 बुक्स का. सी हैबिट आई सी, एक तो आप ये मान लो कि कॉलेज जो है ना वो सिर्फ आपको एक स्टेप है. मतलब जैसे वो होता है ना कि बॉर्नविटा के एड में वो कहते हैं कि सिर्फ आप रोटी खाओगे तो ताकत नहीं आएगी. सेम चीज आई वुड से कि कॉलेज जाने से सिर्फ आपको नॉलेज नहीं मिलती. कॉलेज इज जस्ट 1/3 ऑफ द नॉलेज. आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी. इंटरनेट पे यू कैन टेक लॉट ऑफ नॉलेज. तो ट्राई टू क्रिएट हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. स्किल्स, स्पीड रीडिंग, मेमोराइजेशन ऑब्वियसली आप इंप्रूव कर सकते हो. गूगल के जमाने में भी मेमोरी की अपनी यूटिलिटी है. नॉलेज, आई वुड से प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखिए. मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इंडिया के अंदर अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रोडक्ट मैनेजर हो ना, सीए और वकील की जगह, तो हमारे देश में ब्लैक मनी रुक जाएगा. बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, आप कभी आप किसी नेट बैंकिंग साइट्स पे गए होंगे और आपने पेटीएम या जो न्यू एज यूपीआई वाली एप्स हैं वो यूज करी होंगी, तो आपको क्या ज्यादा आसान लगा होगा? आपको ऑब्वियसली नई वाली ऐप ज्यादा आसान लगी होंगी. और जो ट्रेडिशनल बैंक्स के नेट बैंकिंग है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं. उसका रीजन क्या है? वहाँ ना प्रोडक्ट मैनेजर और डिजाइनर गायब है. एक इंजीनियर, एक सीए, एक आईएएस ऑफिसर अगर बनवाएगा ना साइट को, वो वैसी साइटें बनेंगी जैसी जीएसटी की, इनकम टैक्स की साइटें बनती हैं. और अगर प्रोडक्ट मैनेजर साइट बनाता है तो वो इनकम टैक्स की और जीएसटी की साइट नहीं. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल स्किल फॉर 21st सेंचुरी. वो जरूर सीखिए. बिकॉज आई फील आफ्टर 20 ईयर्स के बाद 50% ऑफ जॉब जो आज हैं वो नहीं होंगी. एआई विल टेक ओवर देम. बट people would require product managers, people would require startup entrepreneurs to create products. तो entrepreneurship is the future. जब मैं 20 साल का था, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, जब मैं 20 साल का था तो मोबाइल फोन में कैमरा नहीं होता था. इंस्टाग्राम तो छोड़ दो, मोबाइल फोन में कैमरा नहीं होता. और क्योंकि इंटरनेट आता था वो भी बड़ा थका हुआ था कि उसमें अगर आपको हेडलाइन भी देखनी होती थी उसमें भी 5 मिनट लगते थे खुलने में. तो वैप यूज करा करते थे हम, अगर आपने कभी टर्म सुनी. तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि 20 साल बाद क्या होगा दुनिया में, वी डोंट नो. You need lot of skills. You have to be. There is a very good book called Linchpin by Seth Godin. वो I would recommend अगर आप वो पढ़ सकते हो तो. ये 200 में उसका भी नाम है. There are a lot of good books on designing etc. also. तो एक good book है Design of Everyday Things. एक अच्छी book है Back of the Napkin for Visual Thinking. So I would recommend all these books and I hope you will get success in future. And मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. एक लास्ट आई थिंक क्वेश्चन ले रहे हैं, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा मनी में. आई एम यूजिंग पेमेंट गेटवे बट देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रेजरपे और इंस्टामोजो. देखिए काफी हमारे प्रोडक्ट में चेंज आया है एंड नाउ वी हैव मोस्ट ऑफ द फीचर्स व्हिच रेजरपे एंड इंस्टामोजो हैव. एंड ये इनिशियली ये चेंज मेरी फीडबैक से ही आना शुरू हुआ था, बट नाउ एज अ कंपनी वी आर गोइंग फुल ऑन एंड competing with Razorpay because initially हमारा फोकस बिगर कंपनीज पे था. मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांड्स आर यूजिंग पेटीएम. But अब now we are, this is called DIY, do it yourself flow. So this Razorpay obviously was strong. So now we are focusing on that and we have very good product for that. And now you have more flexibility. We have lots of products. मैं उतना ज़्यादा time नहीं है, मैं इतना डिटेल में जाता products की. But now we have most of the things which Razorpay have and sometimes उनसे ज़्यादा भी है एक दो चीजें. तो वो है. But obviously Razorpay and Instamojo थोड़ा DIY और smaller startups पे initially भी focus करते थे. थोड़ा सा उनकी
आज से 1 साल पहले ऑफरिंग हमारे से ज्यादा थी, बट आज वो नहीं है। आई पर्सनली फील। जी। एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया है। आई हैव अट्रैक्शन फॉर स्टॉक मार्केट, हाउ गुड इज म्यूचुअल फंड टू गेट स्टार्टेड विद? देखिए, आई वुड रिकमेंड म्यूचुअल फंड ही खरीदो। ये मैं अपने बुकिंग हूँ। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैंने 2008 में जब मार्केट में तेजी आ रही थी, तो आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिप्स। मैं एक प्राइवेट बैंक के किसी एजेंट को बुलाया, उसने मेरे को म्यूचुअल फंड कह के यूलिप बेच दिया। जब पॉलिसी आई तो मैंने कहा यूलिप कैसे आ गई, मैंने तो म्यूचुअल फंड लिया था सिर्फ। तो इधर सर वो यूलिप म्यूचुअल फंड एक होता है। तो एक तो आप थोड़ा ध्यान रखो कि आजकल पेटीएम मनी और इस टाइप की जो ऑनलाइन है ये बेटर है, क्योंकि वो पुश नहीं करते। आप जाके ले रहे हो तो बेवकूफ बनने का चांस कम है। तो मेरे साथ ये हो चुका है। दूसरा ये है कि म्यूचुअल फंड का फायदा होता है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो सेंसेक्स वाज 40,000 यस्टरडे आफ्टर 7-8 मंथ। तो जब पिछली बार सेंसेक्स 40,000 पे था तो आई हैड 0 प्रॉफिट। अब मैंने अपना सिप चलाया रखा पिछले 7-8 महीने में। माय मदर यूज्ड टू से कि क्यों सिप चला रहे हो आजकल, तो एंड माय रिलेटिव्स आल्सो सेड कि मंदी आ रही है, क्या फायदा है कोरोना के बाद, अभी 1-2 साल अभी रहेगा। बट आई वाज यूजिंग सिप्स एंड माय पोर्टफोलियो इज नाउ 6% अबव। तो इस बार जब पिछली बार 40,000 पे था तो आई वाज एट 1% लॉस और 0% प्रॉफिट, बट नाउ आई एम एट 6% प्रॉफिट। तो आई पर्सनली फील सिप्स का बड़ा बेनिफिट होता है। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा वॉरेन बफेट और इन टाइप की बुक्स पढ़ लो, हवा में जाके मत इन्वेस्ट करना। ऐसा मेरी अपना मानना है कि दिस इज लाइक कसाई मार्केट की। आप अगर अनपढ़ की तरह जाओगे तो आपको काट देगी। सर ये इन्वेस्टमेंट वाले जो टेक्निक्स और ये सब होते हैं, डू यू थिंक इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन कॉलेज एजुकेशन एज वेल एज अ? आई फील हमारी जो कॉलेज ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, मैं तो मतलब आई डिड बीकॉम ऑनर्स एंड आई सेड मैं कभी कभार कई लोगों को कहता हूँ बड़ी बकवास डिग्री है बीकॉम ऑनर्स। एंड पीपल फील, एंड जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, दे फील आप बहुत डेरोगेटरी वे में बोल रहे हो, बट वो सच्चाई है। आई डिड बीकॉम ऑनर्स, आई डिड सीए, I studied computer science as self study. तो I realized बीकॉम ऑनर्स में कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। डेबिट क्रेडिट थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे, थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज पढ़ा देते थे। तो I feel अगर म्यूचुअल फंड, स्टैटिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, ये चीजें होनी चाहिए। वहाँ टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएंगे, जैसे सीए में टेक्नोलॉजी पढ़ाते थे, बट वो कोबोल पढ़ाते थे। मुझे समझ नहीं आती थी वो कोबोल क्यों पढ़ा रहे हैं, या पुराने जमाने की चीजें सिखाते रहते थे। आई फील इसमें क्या होगा, कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, बट आजकल इंटरनेट के जमाने में कॉलेज की जरूरत नहीं है। मतलब कॉलेज आप इसलिए जा रहे हो कि एक नेटवर्क बनता है, एक एक्सपीरियंस आता है, एंड ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर कुछ तो पढ़ाई कराती है। बट आजकल के जमाने में यूट्यूब है, Amazon है, यू हैव ऑल दीज रिसोर्सेज, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ट्विटर है, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो 200 बुक्स पढ़ी, तो आई वाज एबल टू रीच आउट टू एटलीस्ट 10-15 जो ये ऑथर्स थे, एंड 2 ऑथर से मैं मिला भी अमेरिका जाके। तो मैं क्या हुआ कि एक ऑथर को आई रोट कि आई एम कमिंग टू अमेरिका, कैन आई मीट यू? एंड शी रिप्लाइड, शी सेड, जो 25,000 रुपीज की उसकी फ्री वर्कशॉप, मतलब $400-500 की थी, शी इनवाइटेड मी टू दैट एंड शी गेव हर बुक फॉर फ्री। तो आप इनको ट्विटर पे रीच आउट करो, इन लोगों को, एंड जनरली आपको बड़ा अच्छा सीखने का ज्ञान मिलेगा। एंड आई पर्सनली फील कि देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, और ये क्योंकि आप शायद कलकत्ता से ज्यादा मतलब लोग होंगे यहाँ पर ऑब्वियसली ज्यादा, तो जनरली हमारे यहाँ ना सोशलिज्म क्यों आती है, गरीब आदमी गरीब क्यों और मिडिल क्लास क्यों है, एक फाइनल चीज मैं ये बताऊंगा आपको। तो आप ये देखो, मिडिल क्लास आदमी की ना ज्यादातर उसकी एसेट्स होती हैं एफडी में, या ज्यादा से ज्यादा उसके घर में होती है। तो घर तो चलो आजकल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, पर अगर किसी के पास घर नहीं है और वो सिर्फ एफडी में पैसे रखेगा, तो यू जस्ट सी, उसको बेचारे को 6% तो इंटरेस्ट आता है। उसमें भी आई एम एट 33% समझ लो टैक्स रेट। तो अगर मेरे को 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, 2% सरकार ले जाती है, तो मैं कमा अपने ले रहा हूँ, सरकार के ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो पर अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हो, तो एज फार एज आई नो सिर्फ 10% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 10% लगता है शेयर मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो ऑब्वियसली आपको टैक्सेशन के एंगल से बेनिफिट है। एंड जनरली म्यूचुअल फंड्स वगैरह की अगर आप देखोगे, पास्ट हिस्ट्री इज मोर देन इन 10 years इट्स जनरली मोर देन एफडी रेट। तो आप देखोगे तो एफडी से आई फील पर्सनली बेटर है। ऑब्वियसली अगर आपको 100% सेफ्टी चाहिए तो एसबीआई की एफडी ऑब्वियसली सिक्योर लगती है लोगों को। बट आई पर्सनली फील म्यूचुअल फंड्स एज अ स्टूडेंट या एज अ यंगस्टर ना, आपको म्यूचुअल फंड ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
if you are investing for 20-30 years, then my personal feeling is that mutual fund is safer. And I know a lot of friends जिन्होंने mutual fund में SIPs लिए and obviously they have earned money. But obviously you should read about financial literature and थोड़ा सा knowledge के बाद ही invest करो. हवा में randomly मत invest करना. जी, थैंक यू सो मच सर. ठीक है, अभी we can draw it to a close because it's getting a little late. It's 5:15 now. Yeah, Adija, you would like to yeah, thank you so much, sir, for inspiring us. We're very sure that all of us who have attended the meeting have had a wonderful time listening to you. And we also wish you all the best for future endeavors and hope that you achieve more success. Sir, we request you, could you stay back a few minutes so that since this is the first episode, so we'd like to take a screenshot with you and the members of the core committee. Thank you, sir. So, yeah, I think that should be the end of this. Yeah. And please, everyone, do follow eCell, the Instagram page and the Facebook page for more such webinars and content. Thank you. So I guess eCell members can turn on their cameras. Abhirup, Sai, Anurit, Yusuf.